Today we are going to start a topic that is functions and their elements. This chapter is for both 11th as well as for the 12th class students, because functions and relations are in the 11th class and functions and the relations are in the 12th class as well. So first of all, I will define you what is a function. Then I will define what is the limit of a function. The value of one quantity often depend upon the value of the another quantity. You know that. For example, the distance is an object travels in a given time depends upon the speed. In this example, the value of one quantity, will call it y, depends upon the value of the another quantity called x. We say y is a function of x. We write y is equal to fx. For example, this is a function, is a type of a machine. If we give input to it and we get output. If input is denoted by x and the output is denoted by y or fx. That is, any rule that assigns elements of one set to the another set is called a function. The sets can be the sets of points, numbers, or any kind. The sets do not have to be same. It is not necessary that the two sets are same. For example, I will take an example. Let us consider the set A and the set B. Set A contains 1, 2, 3, 4 and set B contains 5, 6, 7, 8 and 9. If I give input 1, we'll get 5. If I put 2, we'll get 6. If I put 3, we'll get 8. If I put 4, we'll get 9. That means the set A is equal to 1, 2, 3, 4 is the domain of the function. This is the domain of the function. And 5, 6, 8 and 9. 5, 6, 8 and 9, not 7. Because 7 does not have any pre-image in this set. This is called the range of the function, and whole set B is called the codomain of the function. Another example, if I take y is equal to 2x plus 3, if I put x is equal to 0, 1, 2, 3, we get y is equal to 3, 5, 7 and 9. Y is a function of x and we write fx is equal to 2x plus 3. So this is the basic definition of the function. So what is the definition of the function? If for each value of x, there is a unique value of y, only one value of y. Now the next. Now I will come to the example 2. Suppose there is a set A and there is a set B. There are two sets, set A and set B. Set A contains 1, 2, 3, 4. These are the 4 elements in set A. And set B contains 4, 3, 2, 8 and 1. And set B contains the 5 elements. If the image of 1 is 4, if the image of 2 is 3, if the image of 3 is 2, if the image of 3 is 8, that means if I put x is equal to 1, I will get 4. If I put x is equal to 2, I will get 3. If I put x is equal to 2, I will get, if I put x is equal to 0, I will get 2. If I put x is equal to 3, I will get 8. Now, what is the domain of this function? Domain is set of the values given to the function. That is 1, 2, 3, 0. 1, 2, 0, 3. And the range is 4, 3, 2, 8. 4, 3, 2 and 8. And the codomain is this whole set B. That means 4, 3, 2, 8 and including 1. 4, 3, 2, 8 and 1. Right? That is the codomain. See, range is always the subset of the codomain. Now we'll come to example number 3. If I take a function like this, fx is 20x minus 5x square is defined for every number of x. It is defined for all the values of x, for every number of x. Whatever be the value of x, it is defined. Because there is no denominator in this function. So if I put x is 1, I will get the value of fx. If I put x is equal to 0, I will get the value. If I put x is equal to 1, I will get the value. That is why it is defined for every number of x, without exceptions. 20x minus 5x square is a real number whenever x is a real number. If I put any real number to this, I will get a real number. If I put any real number here, I will get another real number. If I put another real number, I will get a real number. So thus the domain of the function is set of all the real numbers. So here
The domain is set of the odd real numbers. Now I will take the another example. And range is also set of all real numbers, because if I put x is a real number, I will get a real number. If I put x is another real number, I will get a real number. So what is the domain of this function? Domain of this function is set of all the real numbers, and I will receive also set of all the real numbers. Now consider another example. Two sets for the function this fx is x square. If I now have a reverse, if I have a fx is x square, if I take any set -2, 2, 3 by 4 and 0, this is the function, this is the set. Now if I put x is equal to -2 here, -2 ka square, that is 4. If I put 2 square, that is again 4. If I put 3 by 4, that is 9 by 16. If I put 0, that is 0. So that means the set -2, 2, 3 by 4 and 0. This is the domain, and the set 4, 9 by 16 and 0 is the range of the function. Now here 4 is the image of both 2 and -2. 9 by 16 is the image of 3 by 4 and 0 is the image of 0. See, -2 और 2 की जो इमेज है वो 4 है. क्यों है? क्योंकि अगर हम x की जगह -2 लगाते हैं, -2 का स्क्वायर भी 4 बन जाता है. अगर हम x की जगह 2 लगाते हैं, 2 का स्क्वायर भी 4 ही बन जाता है. लेकिन जब हम x का वैल्यू 3 by 4 लगाते हैं तो इसका वैल्यू 9 by 16 आता है, और जब हम x का वैल्यू 0 लगाते हैं इसका वैल्यू 0 आ जाता है. ओके, नाउ इन दिस केस 4 is the image of both 2 and -2. 9 by 16 is the image of 3 by 4 and 0 is the image of 0. Now come here. If we denote the function by f, अगर हम इस फंक्शन को f से डिनोट करते हैं तब हमें क्या लिखना है? f of -2 is 4. f of -2 4 देता है वैल्यू, f of 2 भी 4 देता है वैल्यू, f of 3 by 4 9 by 16 वैल्यू देता है, और f of 0 0 वैल्यू देता है. Now I will come to the next. Now we'll take another example of a function. Say fx is x square minus 5x plus 3. If we put x is equal to 1, that is f of 1. Put here also x is equal to 1, that is 1 square minus 5 into 1 plus 3, which is 1 minus 5 plus 3, which is equal to -1. That means once we put x is equal to 1, we get the value of this function is -1. This is the value of the function. So what is the value of function? Value of function is -1. When it is the -1, once we put x is equal to 1. If we put x is equal to -3, you put here -3 and you will get the value 27. That means 27 is the value of this function at x is equal to -3. In general, if I put x is equal to a, that means a square minus 5a plus 3. That means this a square minus 5a plus 3 is the value of the function at x is equal to a. Now in other words, we can say the image of 1 is -1, image of -3 is 27, image of a is a square minus 5a plus 3. In reverse manner, -1 is the pre-image of 1, 27 is the pre-image of -3, and a square minus 5a plus 3 is the pre-image of a. Now this is how to find the value of a function at a particular point. Now I will define what is the real valued function. So the real valued function is if R be the set of real numbers, if I have a set of real numbers, and A and B are the two subsets. See, A and B are the two subsets of this set R. That means A के अंदर भी real numbers हैं, B के अंदर भी real numbers हैं, right? But these two sets are subsets of this real number R, real set R of R. Then the function A to B, f is a function from A to B, is called a real function or real valued function. Why this is called the real values function? Because only real numbers are involved. A set के अंदर भी real numbers हैं और B set के अंदर भी real numbers हैं. इसलिए इस फंक्शन को जो हमने डिफाइन की फ्रॉम सेट A to सेट B, उस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. Now function cannot always be expressed by a single formula. जैसे मैंने यहाँ single formula से मैंने एक्सप्रेस किया यहाँ पर फंक्शन को. I have expressed the function as x square minus 5x plus 3. ये जरूरी नहीं है कि मैं फंक्शन को सिंगल तरीके से एक्सप्रेस करूंगा. I can express in different ways. उसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं. यानी फंक्शन cannot be always expressed by a single formula. Sometimes functions is defined in the two or more parts. हम उसको bifurcate कर सकते हैं, separate कर सकते हैं into the parts. For example, gx is a function. gx is x and gx is minus x. x कब है? जब हम x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 देते हैं.
और -x कब है? जब हम x का वैल्यू लेस देन 0 देते हैं. सो ये जो फंक्शन बन गई, ये हमने बाइफरकेट किया, इसको हमने दो हिस्सों में स्प्लिट किया, x एंड -x में. ये वैल्यू कब लेंगे और ये वैल्यू कब लेंगे? वंस हम x को पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, 0 से ज्यादा, 0 या 0 से ज्यादा, 1 2 3 1/2 वगैरह 0 से ज्यादा, तब हमें यहां डालना है. अगर हम x को नेगेटिव वैल्यूज देंगे, -1 -2 -3 या -1/2 नेगेटिव्स, तब हमें वो यहां डालने हैं. तो ये एक फंक्शन बन गई, राइट. लेकिन ये फंक्शन दो हिस्सों में हमने स्प्लिट की. जब हमें x को वो वैल्यूज देने हैं जो 0 से ज्यादा है तो यहां डालने हैं, जो वैल्यू 0 से कम है वो यहां डालने हैं. अगर हम ये वाला लेते हैं, यहां हमने x को 1 लगा दिया, 1 हमने इसी में डाल दिया. अगर हमने x को -3 लगा दिया, वो भी हमने इसी में डाल दिया, क्योंकि ये दो हिस्सों में फंक्शन नहीं, ये सिंगल फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यू फंक्शन है, ये एक ही जगह. इसलिए हमने 1 भी उसी में डाला और -3 भी उसी में डाला. लेकिन इसमें अगर हमें 1 डालना है वो यहां डालना है, लेकिन अगर -1 डालना है वो यहां डालना है. नाउ वी टेक अनदर फंक्शन hx इज -1 0 and 1. -1 कब है? when x is less than 0. 0 कब है? when x is equal to 0. 1 कब है? when x is greater than 0. right? These functions are called piece functions. कुछ authors लिखते हैं, इनको हम नाम दिया है उन्होंने piece functions. piece functions, right? यानी -1 कब वैल्यू है? जब x को हम ऐसे वैल्यूज देंगे जो 0 से कम है, और 1 कब वैल्यू है? जब x को वैल्यू देंगे जो 0 से ज्यादा है, और 0 कब वैल्यू है? जब x को एग्जैक्टली हम 0 वैल्यू देंगे. This is how to define a real valued function, how to split a function into, how to bifurcate a function. That means फंक्शन को हम एक ही वैल्यूज में नहीं लिख सकते, हम उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, 2 में, 3 में, कभी कभी 4 में भी हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं. Now we come to the next. Next, value of the function. Value of the function. Now, what is the value of function? Every function has a value, but some functions have value and some functions do not have value. For example, fx is equal to 2x plus 3 upon x minus 5. Find the value of fx at x is equal to 3, 2 and 0. So what is f3? f3 is equal to 2 into 3 plus 3 upon 3 minus 5, that is 6 plus 3 upon minus 2. This is 9 by minus 2, that is equal to minus 9 by 2. Now f of 2 is equal to 2 into 2 plus 3 upon 2 minus 5, that is 4 plus 3 upon minus 3, that is 7 by minus 3, that is minus 7 by 3. Now f of 0 is equal to 2 into 0 plus 3 upon 0 minus 5, that is 3 upon minus 5, which is equal to minus 3 by 5. Now have a look on these values. Now this is the function. Fx is equal to 2x plus 3 upon x minus 5. This is the rational function because it is of the type p by q, px by qx, px by qx. This is the rational function. Rational function के values हमें निकालने हैं at the point 3, at the point 2, at the point 0. So at the point 3 its value is minus 9 by 2. At the point 2 its value is minus 7 by 3. At the point 0 its value is 3 by 5. Now if I take another example, if I take example number 2, if I have fx is equal to x square minus 1 upon x minus 1, find value at x is equal to 0, 3, 2 and 1. See, what is f of 0? F of 0 is 0 minus 1 upon 0 minus 1, that is 1. F of 3 is equal to 3 square minus 1 by 3 minus 1, that is 9 minus 1 by 2, that is 8 by 2, which is 4. Then f of 2 is equal to 2 square minus 1 upon 2 minus 1, that is 4 minus 1 upon 1, that is equal to 3. And f of 1 is equal to 1 square minus 1 by 1 minus 1.
which is further equal to f of 1 is equal to 0 by 0, which is not defined, which is indeterminate. Now have a look. What is the value of the function at 0? It is 1. What is the value of the function at 3? It is 4. What is the value of the function at 2? It is 3. So values exists at the point 0, 3 and 2. But the value of the function, same function, does not exist at x is equal to 1. Now, यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हम 1 पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है because it is indeterminate, which cannot be determined. So what we do, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ जहाँ फंक्शन के वैल्यूज आपको नहीं मिलते हैं, वहाँ पर हम क्या काम करते हैं? हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन. सो लिमिट की ज़रूरत कब पड़ती है? लिमिट ऑफ द फंक्शन की ज़रूरत हम पड़ती है जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन अवेलेबल नहीं हो, यानी x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस फंक्शन का, इसीलिए हम x इज इक्वल टू 1 पर हम लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालते हैं. सो इस वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बाद आई विल कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट इज द लिमिट ऑफ ए फंक्शन. मैं इसको डिफाइन करता हूँ, फिर हम लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं डिफरेंट फंक्शंस का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्रेस करूंगा, एक एक करके दिखाऊंगा कि लिमिट ऑफ फंक्शन, इन्हें एल्जेब्रिक लिमिट्स कैसे निकालते हैं फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट्स कैसे निकालते हैं, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स कैसे निकालते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट्स कैसे निकालते हैं. ये सारा हमारे पास एक फुल फ्लेज्ड एक एक्सरसाइज बन जाएगी जो हम इस चैप्टर को अभी इसके बाद में डिस्कस करने जा रहे हैं. Now next we are going to discuss, after value of the function, now we are going to discuss limit of a function. What is the limit of the function? और इससे पहले मैंने बताया कि लिमिट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन पॉसिबल नहीं है तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है. Now how to discuss limit of a function and how to define it? Meaning of function क्या होता है? Meaning of function, suppose we are traveling from Srinagar to Delhi by car, which will reach Delhi at 8 p.m. As the time gets closer and closer to 8 p.m., the distance of the car from Delhi to Srinagar gets closer and closer to 0. If we consider time is the independent variable denoted by t, and the distance as a function of the time, say ft, then we see ft approaches to 0 and t approaches to 0. जब t कम टाइम हो जाएगा, टाइम जितना कम हो जाएगा और डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, डिस्टेंस विल टेंड टू 0 and time will tend to 0. We say limit of ft is 0 and t approaches to 0, and mathematically we write it like this: limit t tends to 0, ft is equal to 0. Now this is actually the definition, meaning of the limit. This is the meaning of the limit. Now after this we'll discuss the meaning of the limit of the function in different ways, and after taking some examples also. Important notation जो लिमिट में हम इस्तेमाल करते हैं, लिमिट में हम इस्तेमाल करते हैं meaning of x tends to a. ये एरो जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है x tends to a. इस x tends to a का मतलब क्या है, या x approaches to a का मतलब क्या है? कभी कभी हम इसको कहते हैं x tends to a, या हम लिखते हैं x approaches to a. इसका एक्चुअल मतलब क्या है, मैथमेटिकली हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए मैंने लिखा है let x be a variable and a be a constant. सो दो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, x be a variable and a be a constant. Since x is variable, we can change its value at a pleasure. सो हम इसका वैल्यू चेंज करते रह सकते हैं बिकॉज ये वेरिएबल है. इट कैन बी सो चेंज्ड दैट इट्स वैल्यू कम्स नियर टू ए. इसको हम ऐसे चेंज करते हैं ताकि हम आहिस्ता 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 ए की तरफ आ जाएंगे. जैसे ए यहाँ है, एक्स यहाँ है, हमें एक्स को वैल्यूज देते जाना है, मगर ऐसे वैल्यूज देने हैं ताकि हम आहिस्ता 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 ए की तरफ आ जाएंगे. एंड वी राइट एक्स टेंड्स टू ए, इसीलिए हम लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए. इट्स वैल्यू कम्स नियर टू ए, then we say x approaches to a, या x tends to a.
एज x टेंड्स टू a, उसका मतलब है x माइनस a की जो डिफरेंस है, इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. हाउ मच स्मॉलर? कितने स्मॉलर? एज स्मॉल एज वी प्लीज. मे बी लेस देन 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 एंड सो ऑन. इनसे भी काम, यानी इस नंबर से भी काम, और इस नंबर से काम जो ये है उससे भी काम, राइट? अब उस नंबर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से. हम मानेंगे सिंबॉलिकली, वी से चूज ए नंबर डेल्टा, बट डेल्टा शुड बी पॉजिटिव बट वेरी वेरी स्मॉल. सो डेल्टा का वैल्यू है 0.1, डेल्टा का वैल्यू है 0.01, डेल्टा का वैल्यू है 0.001, डेल्टा का वैल्यू है ये, या डेल्टा का वैल्यू इससे भी कम है, इससे भी कम है, सच दैट इसकी डिफरेंस x और a की डिफरेंस जो है वो डेल्टा से क्या हो जाएगी, फिर उससे भी कम हो जाएगी. यानी वी राइट x टेंड्स टू a. इसी को हम कहते हैं x टेंड्स टू a. यानी x एग्जैक्टली a नहीं जाता है, x कम्स नियरर टू a, नियरर टू a. यानी x और a की डिफरेंस बहुत कम होती है. किससे कम होती है? इस डेल्टा से कम होती है. और ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा इस नंबर से भी कम है या उससे भी कम है. ये बहुत, जितना भी हम सोच सकते हैं सबसे छोटा नंबर उससे भी कम है. यानी अगर मैं ऐसे लेता हूं x माइनस a हो गया, मैं ऐसे जा रहा हूं, x से मैं टुवर्ड्स a की तरफ जा रहा हूं, या x से मैं टुवर्ड्स a की तरफ जा रहा हूं, यानी मैं ऐसे जा रहा हूं. ये है राइट साइड से जा रहा हूं और ये है लेफ्ट साइड से जा रहा हूं. यानी अगर मैं x टेंड्स टू a जाऊंगा, मैं ऐसे भी जा सकता हूं या x टेंड्स टू a में ऐसे भी जा सकता हूं. इट डिपेंड्स, क्या a यहां है कि a यहां है. नाउ लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है? द फॉलोइंग डिस्कशन विल अराइव used to the formal definition of the limit. Now what is the formal definition of the limit? Formal definition of the limit is you consider a function fx is x square minus 1 divided by x minus 1. मैंने fx का नाम y रखा, यानी इस फंक्शन का नाम मैंने y रखा. अब मुझे क्या करना है? इन केस y is not defined at x is equal to 1. देखिए, अगर मैं x का वैल्यू 1 लगाता हूँ, 1 square is 1, 1 minus 1 is 0 and 1 minus 1 is 0. यानी ऐसे बन जाएगा fx is equal to x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. जब मैं x का वैल्यू 1 देता हूं तो ये बनता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1. ये 0/0 फॉर्म बनता है, ये अनडिफाइंड बन जाता है, ये इनडिटरमिनेट बन जाता है, ये इनडिटरमिनेट बन, जैसे मैंने प्रीवियस के एग्जांपल में ये बन रहा था कि इनडिटरमिनेट बन जाता है. यहां पर हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है. अब हम x का वैल्यू 1 नहीं देंगे, अब हम 1 की तरफ जाएंगे, लेकिन आहिस्ता 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 जाएंगे 1, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं इन केस इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट हैपेंस, द लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहां से. नाउ हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1? क्योंकि वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अब हम इसका लिमिट निकालेंगे. हम देखेंगे लिमिट इसका क्या है. व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज अ नंबर which is very close to the value. क्योंकि वैल्यू पता नहीं है, अब हम वो वैल्यू निकालेंगे जो उस ओरिजिनल वैल्यू के बिल्कुल नजदीक होगा. देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये जो हमारी फंक्शन है, मुझे अब इसका लिमिट निकालना है. लिमिट निकालना है when x will tend to 1. देखो, x को हम डायरेक्टली 1 दे नहीं सकते हैं. अभी हमने देखा कि x को 1 देने से 0/0 बन जाता. आप यहां भी चेक कर सकते हैं. इट इज 1 स्क्वायर इज 1, 1 minus 1, 1 minus 1, इट इज 0/0 फॉर्म. सो हम नहीं निकाल सकते हैं. इसलिए हम क्या काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. हम लिखते हैं x plus 1 into x minus 1 whole divided by x minus 1. This is equal to limit x tends to 1. It is simply x plus 1. देखो, हम यहां पर पहुंच गए बिकॉज ये x माइनस 1 और ये वाला x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 1. नाउ देखो, मैं इसको किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहता हूं. अगर हम x को देंगे 1 पॉजिटिव, देखिए मैं आपको यहां बताऊंगा. पहले 1 जाने के लिए, 1 पर पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं. एक तो हम यहां से आ सकते हैं या तो हम यहां से आ सकते हैं. अगर हम यहां से आएंगे हमें वो वैल्यूज मिलेंगे जो 1 से बड़े होंगे, क्योंकि ये नंबर लाइन पे यहां से वैल्यूज 1 से बड़े होते हैं. 1 से बड़े वैल्यूज का मतलब है 1.1 होगा, यहां देखिए 1.1 होगा, 1.01 होगा, 1.001 होगा या 1.00001 होगा, ऐसे हो जाएंगे, राइट? और अगर हम यहां से आएंगे, यहां हमें मिलेंगे 0 से कम 0.9,
0.99, फिर 0.999, फिर ऐसे ऐसे करके हम ऐसे घूम जाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 के बाद ये ऐसे 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 चले जाएंगे, और अगर हम ऐसे आएंगे तो सपोज मैं यहाँ हूँ, मुझे x को वैल्यूज लगाने हैं ये चीज, तो मैं 1.1 लगा रहा हूँ, फिर 1.01 लगा रहा हूँ, फिर 1.001 लगा रहा हूँ, फिर ऐसे ऐसे अल्टीमेटली मैं 1 पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से आ जाऊंगा तो मुझे पहले 1.9 मिलेगा, फिर 0.99 मिलेगा, फिर 0.99 मिलेगा, अल्टीमेटली मैं तब भी मैं 1 पर ही पहुंच जाऊंगा। सो 1 पर जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, इधर आई कैन अप्रोच 1 थ्रू लेफ्ट हैंड साइड और आई कैन अप्रोच 1 थ्रू द राइट हैंड साइड। नाउ हैव अ लुक, अगर हम 1 पॉजिटिव लेंगे, यानी मैं इस रास्ते से आ रहा हूं, आई एम कमिंग ऑन दिस वे, तो मुझे पहले कौन मिलेगा, सपोज 1.1, देखिए 1.1, फिर मुझे मिलेगा 1.01, फिर 1.001, फिर 1.00001, अल्टीमेटली मैं 1 पे पहुंचाऊंगा। लेकिन fx = x + 1 का क्या हो जाएगा, जब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो x + 1 तो हो जाएगा, जब मैं 1.1 लगाऊंगा 1.1 + 1 = 2.1, जब मैं ये लगाऊंगा तो ये बनेगा, जब मैं ये लगाऊंगा तो ये बनेगा, जब मैं ये लगाऊंगा ये बनेगा, यानी इट विल गो क्लोजर टू 2 एज दिस विल गो क्लोजर टू 1। इसका मतलब है जब x टेंड करता है 1 को, ये फंक्शन टेंड करती है 2 को। लेकिन अगर मैं इस रास्ते से आ जाऊंगा, ऐसे आ जाऊंगा, यानी 0.9, 0.9, 0.99, 0.999 ऐसे ऐसे करके, तो यहां मिल जाएगा x + 1 का वैल्यू। जब मैं x का वैल्यू 0.9 लगाऊंगा, 0.9 + 1 बन जाएगा 1.9। अगर मैं ये लगाऊंगा तो ये बन जाएगा, अगर मैं ये लगाऊंगा तो ये बन जाएगा, अगर मैं ये लगाऊंगा तो ये बन जाएगा। यानी सी, अगर मैं x को क्या दे रहा हूं वैल्यू 1, मगर मैं कहां से आ रहा हूं, मैं इस रास्ते से आ रहा हूं, और मुझे x + 1 का वैल्यू ये जाता हूं, ये अल्टीमेटली क्या किसके नजदीक आ रहा है, 2 के नजदीक, और ये किसके नजदीक जा रहा है, ये जा रहा है 1 के नजदीक, और x + 1 का वैल्यू 2 के नजदीक जा रहा है। इसका मतलब है लिमिट 1 पॉजिटिव, यानी अगर मैं 1 ही देता हूं लेकिन थ्रू द पॉजिटिव वैल्यूज, तो मुझे वैल्यू 2 मिलता है। लेकिन अगर मैं 1 माइनस की तरफ जा रहा हूं तब भी मुझे वैल्यू 2 ही मिल रहा है। देखिए ये भी 2 बन गया और ये भी 2 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों लिमिट सेम है, इसलिए हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1 upon x - 1 = 2। अब ये मैंने प्रैक्टिकली दिखाया आपको एक्चुअली होता क्या है, लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। इसी चीज को हम एक शॉर्टकट तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि किस तरह से हम आज के बाद ये लिमिट्स हम निकालेंगे। लेकिन उसके लिए एक ख्याल रखना है कि हमें अगर लिमिट 1 है, आई कैन पुट दीज वैल्यूज और आई कैन पुट दीज वैल्यूज। ये जो वैल्यूज है ये 1 से ज्यादा है और ये जो वैल्यूज है ये 1 से कम है। जैसे यहाँ है, ये सारे वैल्यूज 1 से कम है, लेकिन ये सारे वैल्यूज 1 से ज्यादा है। यानी अगर मुझे 1 की तरफ आना है तो मैं इस रास्ते से भी आ सकता हूँ, इस रास्ते से भी आ सकता हूँ। अगर मेरे पास 2 है तब भी मेरे पास 2 रास्ते हैं आने के लिए, एक तो यहां से आ सकता हूं, एक तो यहां से आ सकता हूं। यहां मुझे मिलेगा पहले 1.9, फिर 1.99, फिर 1.999, अल्टीमेटली मैं 2 पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं यहां से आऊंगा तो मुझे मिलेगा 1.1, 2.1, तो यहां मिलेगा मुझे 2.01, 2.001, अल्टीमेटली मैं 2 पर पहुंच जाऊंगा। यानी 2 पर पहुंचने के लिए भी 2 रास्ते हैं, एक ये है और एक ये है। इसको हम कहेंगे 2 + h और इसको हम कहेंगे 2 - h, राइट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यही एग्जांपल हम अब एक शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। ये तो मैंने एक्चुअली दिखाया कि ये किस तरह से आप नोट कर सकते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस होल थिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन केस ऑफ लिमिट्स। यानी इसीलिए हम कहते हैं जब x का लिमिट 1 है, इस फंक्शन का लिमिट 2 है, चाहे हम इस रास्ते से आए या इस रास्ते से आए। In both the cases, its value is 2. Hence, we say the limit of this function is equal to 2. What is the actual value of the function? Actual value possible नहीं है, क्योंकि जब हम x का value 1 लगाते हैं, it becomes 1 - 1, 1 - 1, it becomes 0/0. इसलिए जिन फंक्शनों का actual value possible नहीं है, उन फंक्शनों का हम लिमिट निकालते हैं। आगे जाकर अब मैं बताऊंगा कि इस एग्जाम्पल को हम एक दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे।